اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ گجرانوالہ کی نامی گرامی شخصیت ہے۔ شعبہ صحافت سے ان کا ایک بڑا نام تھا گجرانوالہ میں، پھر عملی طور پر سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور عام لوگ پارٹی کے نام سے ایک پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائی اور سیاسی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ نسیم صادق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی سیاست میں آنے کا مقصد اور سرمایہ دارہ نظام کے خلاف ایک جنگ جو لڑ رہے ہیں۔ آج کل ان کا جو موجودہ پاکستان کے اوپر جو قرض ہے اس کے وجہ سے خاص مشن لے کر اپنی پارٹی کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور حکمرانوں سے موجودہ جو نظام ہے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ وہ گجرانوالہ کے اندر ہو، لاہور کے اندر ہو، اسلام آباد کے اندر ہو، کسی بھی شہر کے اندر وہ ان کی آواز ہمیں اس ٹائم نمایاں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ نسیم صادق صاحب آپ کا ٹائم دینے کا آج خصوصی طور پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو PKN نیوز کا بہت شکریہ، سردار طاہر محمود صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ کے میڈیا کی وساطت سے یہ میرا پیغام پاکستان میں رہنے والے ہم لوگوں تک پہنچے گا، یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے گی۔ آپ کا شکریہ جناب والی۔ اچھا نسیم صادق صاحب، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ بیسیکلی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، ذریعہ معاش کیا ہے اور سیاست میڈیا کو چھوڑ کر سیاست میں کیسے آئے؟ میں بیسک میری پیدائش گجرانوالہ کی ہے اور گجرانوالہ جو ایک تاریخ رکھتا ہے، آپ کو پتہ نہ ڈر لوگوں کا یہ شہر ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ میں جناب شہر سے میرا تعلق ہے اور میرا سیاست میں اس سے پہلے کوئی خاندان میں دور کوئی نہیں ہے۔ اور میں چونکہ میری فیملی، میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے بھائی جو ہیں وہ سارے اپنے بزنس اپنا کاروبار کرتے تھے، میں شروع سے شوق تھا کہ کچھ کرنے کا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میں صحافت میں گیا، صحافت میں نے کافی ایسے ایشو اٹھائے جن کی ضرورت تھی اس وقت، اور مجھے لگا کہ پاکستان کو بیسک جو ہے نا وہ قلمی جہاد سے زیادہ عملی جہاد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ تو طاہر صاحب میں نے جو نا ایک پروگرام بنایا کہ کیوں نہ پاکستان میں عام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس پہ پلیٹ فارم ایسا بنایا جائے جس پہ عام لوگوں کے لیے حقوق کے لیے ان سے آواز اٹھائی جائے اور پریکٹیکل جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ تو یہ میں نے 2012 میں میڈیا کو خیر بات کہہ کے 2012 میں اسٹرگل شروع کی۔ 2014 22 اکتوبر کو میری یہ پولیٹیکل پارٹی نیشنل پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں وجود میں آئی۔ الیکشن کمیشن پاکستان میں 22 اکتوبر کو رجسٹرڈ ہوئی۔ پھر 2014 سے لے کے آج تک ہم رکے نہیں، ٹھہرے نہیں۔ اچھا بیسیکلی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں بیسک چونکہ ہربلسٹ ہوں، میری میڈیا بھی پہلے میں جو کرتا تھا وہ اس کے بعد میرا کلینک تھا، میں نے ہربلسٹ کیا ہوا ہے، ہومیو کیا ہوا ہے، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس شہر میں صحافت کرنے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اور جب یہ سیاست کا آغاز کیا، چونکہ اگر پاکستان کی سیاست کریں تو وہاں تو پہلے اور سیاست تھی، میں نے ایک سیاست کا نظریہ اور چینج کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سیاست میں آگے پھر بڑا یونیک نام آپ نے ڈھونڈا اور اسی نام سے ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں بھی تقریباً ملتی جلتی پارٹی ہے۔ کیا آپ اس سے متاثر ہوئے یا ایک خود سے ایک ذہن میں نام؟ نہیں، اصل میں مجھے نا بعد میں پتا چلا 2015 میں کہ انڈیا میں عام آدمی پارٹی کے نام سے پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے بھی اپنا آغاز ایسے ہی کیا تھا انا ہزارے کے ساتھ مل کے۔ اصل میں نے تو یہ سوچا کہ پاکستان میں جو پرابلم ہے نا، جو میں میڈیا میں تھا شروع سے ہی میں عام لوگوں کے مسائل پہ بات کرتا تھا، ان کے مسائل پہ بات کرتا تھا، ان کی جو حق ڈاکہ مارا جاتا اس پہ بات کرتا تھا، عوامی ایشو پہ میں لکھتا تھا اور بات کرتا تھا۔ تو میں نے یہ نہیں کہ 200 نام سوچے، ایک نام تھا وہ عام لوگ، عام لوگوں کے پرابلم، عام لوگوں کے مسائل، پسا ہوا طبقہ جو تھا، جو 2 وقت کی روٹی کے نام پہ جو ہے نا ان کو لوٹا جا رہا تھا، ان کے جسم سے کپڑے چھینے جا رہے تھے۔ بس یہی سوچ تھی، خیال تھا جو مجھے عام لوگ پارٹی، عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے حقوق کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا۔ صحیح۔ اچھا تو ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور شادیاں کتنی ہیں؟
शादी एक ही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा और बेटा मेरा जो है ना 3 है बेटे हैं, अच्छा एक बेटी है। माशाल्लाह बेटी जो BS इंग्लिश कर रही है, बेटा बड़ा जो है हमाद नसीम वो अल्हम्दुलिल्लाह IT से मुंसलिक है। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर एक जब ये पार्टी रजिस्टर हो गई तो इसके लिए एक बड़ा टीम वर्क चाहिए, पैसा, एक पाकिस्तान में तो पैसे के बगैर सियासत ही नहीं होती, तो आप ये मिशन अकेले लेके निकले। अब आपके काफिले में हजारों सैकड़ों लोग मौजूद हैं, नजर आते हैं, लेकिन ये बड़ा मशक्कत तलब काम है, इसको ही क्यों मुंतखब किया आपने? असल में मैंने बताया ना, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपने रास्ते में चुनता है ना, तो जब उस इंसान से काम लेने हो तो वो फिर वो उससे वो रास्ते दिखा देता है। ठीक। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं सोचता था शुरू से मैं क्या करूं, मेरी उम्र में लोग सोचते थे हम कारोबार करें, गाड़ियां बनाएं, हाँ। बंगले बनाएं। यकीन कीजिएगा कि जिस दिन कदम रखा इस पार्टी में, इसका आगाज किया, कोई चीज नहीं, 24 आवर्स से यही है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूं। पाकिस्तान में जो काबज लोग हैं, जो गंदी सियासत है, अब जो आप लफ्ज बोला सियासत, हाँ। ये सियासत नहीं है, ये सियासत के नाम पर ढोंग है, ये ठेकेदारी है और ये गंदा सिस्टम है जिसके खिलाफ मैं निकला हूं। सियासत कुछ और है जो नबी ने हमें बताया है। वो सियासत तो पाकिस्तान में इन्होंने आने नहीं दी। वो जो ग्रोह, वो जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कभी पांव पे खड़ा हो, वो सियासत को भी नहीं चाहते थे। मेरे पाकिस्तान का ताहर भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पाकिस्तान का जो निजाम है ना सियासी, मेरा अपना नहीं है, इंपोर्टेड है। सियासी निजाम अपना नहीं, उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स निजाम अपना नहीं, मुआशी निजाम अपना नहीं, अदालती निजाम अपना नहीं, तलीमी निजाम अपना नहीं, मेरे तो निजाम अपना ही नहीं, इंपोर्टेड है। मेरा वज़ीर आज़म मेरा इंपोर्टेड होता है, मेरा वज़ीर आला इंपोर्टेड होता है, मेरा तलीमी निजाम इंपोर्टेड होता है। आप समझ रहे हैं? जी जी मैं समझ रही हूँ। तो क्या है, तो ये जिदोजहद बनती नहीं, हमारी जिदोजहद बनती है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम निजाम ही इम्पोर्टेड है, वजीर आजम इम्पोर्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे आपसे पहले भी आपकी पार्टी के साथ यहाँ पे सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर मौजूद है। हर पार्टी तब्दीली के नाम पर एक पार्टी 2018 के इलेक्शन में इक़्तिदार में भी आई, लोगों ने उसको मौका भी दिया, वोट भी दिया, लेकिन वो भी स्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आई। अब लोगों के सामने कैसे ये चीज यकीन दिलाएगा कि आप लोग उस तरह की तब्दीली नहीं जा रही जैसे पहले आई है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हर बंदा कोशिश करता है बेहतरी की। इमरान खान साहब ने भी कोशिश की कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके, मगर आपने जुमला बड़ा अच्छा बोला कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो कैसे किसी सियासतदान को इस्तेमाल करती है, उसका एंड आपने देख लिया। जी जी ऐसी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। अच्छा, मुझे ये पता है सरदार साहब, आप जो अपना हक अदा कर रहे हैं ना, आपके पास ये बेहतरीन ताकत है माइक इस दौर की। मेरे पास जो बेहतरीन ताकत है वो है आवाज। बेशक। तो जैसे हमने कहा कि देखें, इंपोर्टेड का जुमला बोला, हाँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे वो इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बनी हुई है या दूसरी बनी हुई है, वो सब मैं जो अपना निचोड़ निकालना है, मैं अपने मीडिया का निचोड़ बताऊंगा। हाँ। ये ढोंग, फ्रॉड, बेईमानी और बदध्यांती पे मत, नहीं तो वरना यकीन कीजिए जितनी लोगों के पास तादाद है, जितने लोगों के पास पावर है, जितने लोगों के पास वोट बैंक है, ये तहरीक चला के क्या नहीं कर सकते। मैंने नहीं देखा ये लोग अपने बुनियादी बेसिक बात की हो, मगर जब भी बात की है इन्होंने अपने मफाद की बात की है या एक सेनेटर ले लिया और बस मजे से बैठ गए। इशू ये नहीं, इशू ये पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम, जैसे मैंने दुख की हाथ पे रखा अभी मैंने कि पाकिस्तान जो मेन प्रॉब्लम है जिसका मैंने अभी तहरीक लेके चला हूं, उसकी मेन वजह देखे, जैसे इंपोर्टेड की बात कर रहा हूं, 78 साल में पाकिस्तान के जितने वज़ीर खजाना आए हैं वो भी इंपोर्टेड थे, IMF के और वर्ल्ड बैंक के, वो गुलाम थे, उनके भेजे हुए एजेंट थे पाकिस्तान में। ये तो सूरत हाल है सरदार साहब। सही सही। अच्छा, अब आपका जो बुनियादी आम लोग पार्टी का स्लोगन क्या है? बेसिकली आम पब्लिक को आप क्या, जैसे नाम है आम लोगों की आवाज, तो आपका बुनियादी स्लोगन क्या है? क्या अगर आपको लोग आपके साथ आपकी तहरीक का बाजू बने तो क्या सोच के बनेंगे? आम लोगों की ताकत, पाकिस्तान की ताकत, ये मेरा स्लोगन है जी। ठीक है। जब ये जमात ही आम लोगों की है तो आम लोगों को तो मैं कोशिश कर रहा हूं, पहले मैं खुद जागा ना, मैंने पहले अपने आप को समझा, जो खुद ही इकबाल भी बोलते हैं, कुरान में भी है, नबी भी जो फरमा रहे हैं, खुद ही तो है। तो सबसे पहले अपने आप को जगाया। मैं पाकिस्तान में रहने में 35 करोड़ लोगों को जगा रहा हूं, उनके ऊपर चंद अशरफिया जो हैं, चंद अशरफिया खानदान जो हैं, जो उनको हाईजैक किए हुए हैं, जो उनके नाम से यही लोग जो पाकिस्तान में आवाम में नारे मार रही हैं, उन्हीं को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा नारा जो है ना, पाकिस्तान की जो पावर है वो आम लोग हैं,
आप जागे ना, अपने वोट की पर्ची को आप पहचानते हैं चंद रुपयों पे या बर्गर पे या नान पे या कीमे वाले नान पे या बिरयानी के प्लेट में बिक जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। मेरा पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है, मैंने पाकिस्तान के नौजवानों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तानी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी पावर को पहचाने। जो मेरी आम लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले 98% आम लोग ही जो पाकिस्तान के मालिक और वारिस हैं, हमें गुलाम बना दिया गया। गुलाम सरदार किस लिए बनाया? सरदार साहब बनाया उन्होंने, सिस्टम एक ऐसा लेके आए तो मेरा सिस्टम नहीं था, उस सिस्टम के तहत इनको गुलाम बनाया गया है। सही। अच्छा नाज़रीन को मैं एक बात बताता चलूं कि जो पिछली निगरान सेटअप था, नसीम सादिक को वहां भी बड़ी ऑफर हुई सेटअप में। फिर उससे पहले एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम पे एक पार्टी बनी, उसके भी एक बड़े खास बंदे जिन्होंने आपको ऑफर की कि आप मुझे अपनी पार्टी में ले लें, मैं वकला ले आऊंगा, मैं सरमायादार ले आऊंगा और आप चेयरमैन रहें। ये तमाम चीजें आपको मिलने के बावजूद आपने इसके फायदा क्यों नहीं उठाया? और जो पिछले 2008 से पहले जो सेटअप था मोहसिन नकवी साहब का, उसमें भी आपको बड़ा मौका था कि आप स्टैब्लिशमेंट के करीब होते, मुल्की निज़ाम के अंदर करीब होते, पार्टी अपनी को बीच में रह कर भी आप मजबूत कर सकते थे, फंड ले सकते थे, पैसा इकट्ठा कर सकते थे, वही आप इस्तेमाल करते, क्यों नहीं किया? असल में सरदार साहब वजह ये है कि मफादात की जंग है। वो मुझे भी वो अपने मफाद में लेके आना चाहते थे, ठीक, जो मैंने इनकार किया। वजह ये है कि लोग तो कहते हैं वक्ती तो आए, और मैं सब वक्ती तो जब आप आ गए ना तो फिर आपको माननी पड़ेगी। मैं देखिए, मैं जिस निज़ाम के खिलाफ मैं निकला हूँ, मैं समझता हूँ मैं उसकी गुलामी नहीं कर सकता। सिस्टम तो चल रहा है, उसके तहत हमें उसको संभाल लेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का करम होता है कि हम बिके नहीं। अल्लाह का ये खास करम है। बहुत सारे ऐसे फोरम आए, बहुत सी शख्सियात है जिन्होंने बड़ी बड़ी ऑफरिंग कराई, यकीन कीजिएगा आपके भाई को पार्टी के हवाले से, मगर हम नहीं बिके। ये वजह बेसिक शॉर्ट बस बताता हूँ। अब पता क्या, अब मेन चीज जो है ना वो है पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के जो बेसिक जो मेन चीज है वो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, हमारी ज़राअत और इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक, हमें समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, जिस पे काम ही नहीं किया। अब जिनका एजेंडा था ना सरदार साहब पाकिस्तान को पीछे रखने का, अच्छा वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो। तालीमी निज़ाम जैसे बताया हमारा अपना नहीं है, लॉर्ड मकाली ने दिया, ये तरतीब दिया हुआ निज़ाम है जो आपको नौकर रखता है, मालिक नहीं बनते। खुद वो मालिक बन के बैठे हुए हैं और हम नौकर की तरबियत उनसे ली। आज भी मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फारग होता है तो ये सिखाया जाता है तुम नौकरी के लिए जाना है, नौकर लफज, तो उनको कारोबार, यानी कारोबार का मतलब पहला लफज आता है कार, यानी कि कार वाले की तरफ लेके जाना, मालिक ना बन जाइए लोग। ये मेरी लड़ाई बेसिक इन सिस्टम से है। मेरी चंद खानदानों से नहीं है मेरी लड़ाई कि ये समझते हैं कि जरदारी खानदान या ये नवाज शरीफ खानदान, ये तो उनके मोड़े हैं जिनके हाथ में इनकी डोरियां, मेरी लड़ाई बेसिक उनसे हैं। वो है ब्रिटिश, वो है अमेरिका, वो है इसराइल, वो है इल्यूमिनाटी, वो है फ्रीमेसन, बेसिक जो बेसिक निजाम को तरतीब दे रही हैं, जिनके बैंक हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जिनके हाथ में मीडिया है, रुक चाइल्ड खानदान जिन बैंक उनकी है, रुक राइफल खानदान जिनके जनाब के अदविया को बना रहे हैं, मेडिसिन वो बना रहे हैं, तलीमी निजाम का तरतीब दिया हुआ है। लड़ाई तो उनसे है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं ये लोग मोड़े हैं, ये मैं जरूर इनकी तनकीद करता हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये बिकते हैं। पहले पता क्या होता है, पहले मेरा वोटर बिकता है, आम बंदा बिकता है। पहले बताया ना 2000 रुपए पे बर्गर पे बिरयानी पे कीमे पे बिक जाता है। जब ये बिकता है ना तो घर से कचरा नहीं उठाया जाता, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। आपको बच्ची दाखिल कराने के लिए स्कूल कॉलेज फोन करवाना पड़ेगा, थाने में जाने के लिए आपको फोन करवाना पड़ेगा। सिस्टम आ गया, आप समझ रहे हैं आप जी। तो ये सिस्टम तो ताकतवर कर दिया कि काउंसलर को भी इलेक्शन लड़ने के लिए 10 लाख चाहिए, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपया कर दिया उन्होंने, और MP MLA के तो अरबों में बात आ गई। तो आम जो इलेक्शन था ये आम बंदे से दूर कर दिया गया। अब इन लोगों को समझाने की कोशिश है, खुदा के लिए ये प्री प्लान हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। सही। कारोबार बंद, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, ताजर परेशान। आज ये वक्त आ गया कि एक अदारे के बंदे ताजर को जैसे करोड़ रुपए अपने कारोबार में उसके गिरबान से पकड़ रहे हैं। वजह क्या है, ये जाग नहीं रहे, ये कमजोर है, इनको अपनी ताकत का नहीं पता। मेरी लड़ाई इनके लिए, इन लोगों के लिए। मैं पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई तो मुआशी एक आजादी के लिए है ना। जो पाकिस्तान में जो बेसिक प्रॉब्लम है सरदार साहब, वो है मुआशी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में, मैं तो उसके हल लेके आया हूं। उनको बता रहा हूं मुल्क की कर्ज उतारेंगे, मुल्क की कर्ज की गुलामी से आजादी लेंगे। मेरा जो मुकदमा है, मैं जो लड़ने जा रहा हूं, तो गरीब आवाम का है, पाकिस्तान में रहने वाले आम लोगों का है। वो ताजर का है, वो बिजनेसमैन का है, इंडस्ट्री मैन का, वो बड़ा छोटा है, मगर मेरी लड़ाई के लिए है।
मैं उनका मुकदमा लेके बाहर निकला हूं कि मुल्क को पांव पे खड़े करना है, पर इस निजाम में रहते हुए नहीं हो सकता। ना सूद से जान छूट सकती है, ना करप्शन से जान छूट सकती है, ना डॉलर की दहशत से बाहर आ सकते हैं, ना फरंगी निजाम से। भाई सारी चीजों इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, पाकिस्तानी जाग जाए। अच्छा, मैंने चंद दिन पहले आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, और जिसके अंदर आपने पाकिस्तान के जो बुनियादी इशू है कर्ज, जो IMF से हम वर्ल्ड बैंक से मुख्तलिफ इदारों से इकट्ठा करते जा रहे हैं, आपने हर बच्चे के पैदा होने वाले बच्चों पे एक बोझ ला रहे हैं, आपने उसके हवाले से एक बड़ी आवाज और टाइम दिया है हुक्मरानों को, हुक्मरान तबके को। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये बड़ा अहम इशू है। असल में मैंने बताया कि 22 साल मेरा सहाफत का सफर और 10 साल ये डाल लें, 32 साल का मेरा सफर है जो जिसका निचोड़ निकाला कि पाकिस्तान में से प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान का कर्ज है। अच्छा, मजे की बात बताऊं सरदार साहब को, पाकिस्तान में जो कर्ज लेते हैं ना, ये अशरफिया, ये पॉलिटिकल और ये ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत ही नहीं। मैं कसम उठा के कह रहा हूं कैमरे के आगे, मेरी आवाज ऊपर तक अगर पहुंचे तो सुन ले, पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं। ये अशरफिया जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, वो अपने लिए कर्ज लेते हैं। पता क्यों सरदार साहब? सबसे इजी वे कर्ज है, ये पैसा आता है ऐसे बांट देते हैं, वरना ये ठेके लेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान को लूटमार मचाएंगे तो ये तो जनाब इनको साथ देना पड़ेगा। लूटमार वो भी मचाते हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, ये कर्ज की पाकिस्तान को जरूरत कतई नहीं। ये कर्ज सिर्फ अपने लिए अशरफिया लेते हैं, अपने हिस्से बांटते हैं, और अपने अपने पेट जो है वो इनके अभी तक भरने नहीं गई, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कभी भरने भी नहीं इनके। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जो है बेसिक देखे, वो उसका मसला बताते हैं गुर्बत। गुर्बत से भी उसका ज्यादा मसला जो है वो है निजाम। मैंने बताया निजाम खराबी है, क्योंकि निजाम उनका अपना है, जो उनको कर्ज दे रहे हैं, कर्ज दे के उनको फिर आके उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। अब है सर, मुझे तहरीक का आगाज किया, जो डेडलाइन दी गवर्नमेंट को 1 साल की, कि 1 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान का कर्ज उतारना है। मेरे गरीब बंदे की, मेरे आम आदमी की आपने जान छोड़नी है। 4,33,000 रुपए का मेरा बच्चा जो मकरूज है, अभी जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी जान छोड़नी है। वो है कर्ज, सूद, करप्शन, डॉलर की दहशत और फरंगी निजाम। ये मैंने सरदार साहब लाने की डेडलाइन दी है गवर्नमेंट को, 1 साल के अंदर अंदर ये कर्ज उतरे। 1 साल तो बड़ी दूर की बात है, 1 महीने में कर्ज उतर सकता है। एक पाकिस्तान में इतना कुछ है, सोने की चिड़िया सुना आपने शुरू से? ये सोने की चिड़िया है, तो हमारे पास इतना कुछ मौजूद है, हम कर सकते हैं, मगर ये कर्ज कभी भी नहीं उतारेंगे, ये मैं आपको बता दूं, वरना ये लेते ही ना। मगर हमने इनको इतना प्रेशर डालना है, इसलिए मैं आवाम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में 35 करोड़ आवाम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उठें, इतना प्रेशर डालें कि सबसे पहला जो इशू है ना, वो हमारे कुछ नहीं होता। 5 साल के लिए हम तरक्की काम रोक दे, कुछ नहीं होता। क्या होता नहीं? कई ऐसी गवर्नमेंट आती है सरदार साहब, तरक्याती काम नहीं होते, हम बर्दाश्त करते हैं। हम और बर्दाश्त कर लेंगे, 1 साल हम भूख काट लेंगे, मगर सबसे पहले कर्ज उतारे, ये प्रेशर डालें। ठीक हो गया। अरे ये तो आपने एक टाइम लिमिट दे दी है। अब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा हमारा पंजाब, पिछले 5 साल से तकरीबन ये बल्दियाती निज़ाम के बगैर आम बंदा जो सिस्टम है उसको निकाल दिया गया, और जब भी इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है तो कि नया निज़ाम आ जाएगा, उसकी दोबारा से वो होगा। आजकल फिर एक बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बहस हो रही है, उसके लिए अलकाबंदी हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो निज़ाम की खराबी, जैसे आपने कहा बल्दियाती निज़ाम जो इलाज कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, क्या वो ठीक है? और इसके लिए अगर आपकी पार्टी को मौका मिलेगा तो आप जरूर उसके लिए तैयार है? यकीनी बात है। देखिए, मैं तो कोशिश करूंगा कि अख्तियारात निचली सतह तक आए। अख्तियारात नीचे आएंगे तो आम बंदे की सुनी जाएगी ना, मगर ये कभी करेंगे नहीं, याद रखिएगा। अगर मुशर्रफ दौर में भी हुआ था, आप चेक कर लें, अभी भी चेक कर लें। 2 चीजें मैं आपको अभी जिक्र करूंगा। एक तो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाते नहीं है ना, ये करवाएंगे, और करवाएंगे तो अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए। दूसरा भी आपने सुना होगा, कुछ देर पहले तो मियां महबूब साहब ने कहा कि जनाब सूबे की जरूरत है हमें। आपने देखा जी, ये नया एक उन्होंने मोरा अपना लॉन्च किया, जल्दी आपके सामने शक्ल आ जाएगी। हमें सूबों की जरूरत अभी नहीं है, हमें पहले पाकिस्तान में खुशहाली लाने की जरूरत है। अखराजात जहां बढ़ जाएंगे, हमें तो अखराजात कम करनी है और पैदावार बढ़ानी है। ये पाकिस्तान का सिंपल सा फार्मूला है सरदार साहब, ऐसी कि नहीं? जब आपका दायरे में 2 बंदों की जरूरत है, आप 10 रख लेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। सही। तो हमने पाकिस्तान को नुकसान को बचाने के लिए अभी हमें सूबों को, मैं भी कहता हूं, होने चाहिए, अख्तियार नीचे जाने चाहिए, मगर अभी नहीं। पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता मियां महबूब साहब कि पाकिस्तान में सूबे आए। पहले मेरी आवाज में आवाज मिलाएं,
मियां अमर मूसा, मैं को दावत देता हूं आज सरदार साहब की वसातत से कि प्लीज इस चैनल की वसातत से कि आप मेरी दावत कबूल करें, पहले कर्ज उतारने की तहरीक चलाएं, कर्ज उतरेगा फिर मुल्क खुशहाल होगा, फिर आप सूबे बनाएंगे। सही। आप चाहते हैं कि बलदियाती निजाम हो, यानी आप जो मेरी बात आपकी समझ आई। अच्छा, ये सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, जैसे 3 सूबों में इलेक्शन हुआ, पंजाब में अभी तक नहीं हुआ और इस्लामाबाद में नहीं हुआ। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड के भी वो खत्म हो गया टर्न, और अब उसके आगे का कोई पता ही नहीं है। बुनियादी जड़ जो नुकसान है पाकिस्तान के या कश्मीर के अंदर, जैसे आपने क्या फलस्तीन के लिए हजारों लोग हम इकट्ठे करते हैं, कश्मीर के इशू पर भी इकट्ठे होते हैं, क्या पाकिस्तान के इशू के ऊपर आपके साथ हजारों लोग नहीं आ सकते? जिनकी उसके लिए जैसे अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के अंदर उठ खलोई गैर सियासी प्लेटफॉर्म पे, और लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और उन्होंने हासिल भी किए। क्या इस तरह की तहरीक आप लोग जितने भी पार्टियां मौजूद है उनके साथ इत्तेहाद करके आप शुरू नहीं कर सकते? जी, मैंने तो सरदार साहब बता रहा हूं, मैंने तहरीक का आगाज कर दिया। ठीक है। पाकिस्तान में मुल्क की जो कर्ज है ना, ये गुलामी की जंजीर है, इसके तोड़ना है। मैं आपकी वसातों से फिर तमाम पार्टियां, तमाम वो लोग, तमाम वो जो पाकिस्तान को खुशहाल करना चाहते हैं, उनको दावत देता हूं वो आए, वो हमारी टीम का हिस्सा बने, हम उनकी टीम का हिस्सा बने, मिलजुल के हम पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। मैं डॉक्टरों को, वकला को, जर्नलिस्ट को, बिजनेसमैन को, ताजर को, सबको दावत देता हूं, नौजवानों को खुसूसन तौर पर आए। ये तहरीक आपकी है, जैसे सरदार साहब फरमा रहे हैं। उनका शुक्रिया सरदार साहब का कि इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हम मिल जाएं, और ये तो मेरी कोशिश है, हम मिलके एक हो जाएं और इशू पे, एक तहरीक पर, एक एजेंडे पर एक होके पाकिस्तान में खुशहाली लेके आए। मुआशी जो जंग है वो हमें जीतनी है इंशाल्लाह। सही, यानी आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे इसके बारे में, प्लानिंग करें आप? जी जी, इस इशू के ऊपर सबको, हमारा एजेंडा का हिस्सा है जी, ये एजेंडा का हिस्सा है हमारा। सही सही, यानी कि आप सबको दावत दे रहे हैं? जी, मैं सबको दावत दे रहा हूं। ओके। अब अगला जो बुनियादी जो आपसे मैं इशू है कि आने वाले वक्त है जो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, स्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पर सियासत के लिए उतनी गुंजाइश लोग समझते कि नहीं है। एक जमाती सिस्टम आ गया मुस्लिम लीग नून का ही, वही इलेक्शन लड़ेगी, वही जीतेगी, दीगर पार्टियां कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कोई इंतखाबी मुहिम नहीं करेगी, और जो हो रहा है, क्या इस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले कहा इस निजाम में रहते हुए, फरंगी का निजाम, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इस फरंगी के निजाम में रहते हुए आप कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 78 साल में तरीक उठा के देख ले, निजाम एक ही है, वो इस्लामिक वर्ल्ड आर्डर, वो है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम। उसको रोकने के लिए वन वर्ल्ड आर्डर अमेरिका हर साल नया लेके आता है, तो हमें वन वर्ल्ड आर्डर को रोकना है, इस्लामिक वर्ल्ड आर्डर को, अपने निजाम को, मेरे नबी के निजाम को लेके आना, जो बड़ा इजी है, जो आपको सिक्योरिटी देता है, जो आपको रोजगार देता है, भूखा नहीं मारता, हर बेटी की शादी होती है उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं और दुनिया पूरी में जैसा मेरा अपना निजाम है इस्लामिक वर्ल्ड आर्डर, जिसके लिए मैं जदोजहद कर रहा हूँ। ठीक है। अब दो अहम चीजें इस वक्त खैबर के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सूरत हाल है, और एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी गवर्नमेंट चाह रही है कि वहां पर ऑपरेशन हो, और पीके के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इसकी मुखालफत कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो मुल्क के अंदर ऑपरेशन की, आप एक सियासी वर्कर, एक सियासी पार्टी के चेयरमैन के जरिए से इसको क्या सपोर्ट करते हैं आप इसकी? देखिए, जो तो मुल्क की मफाद में है ना, हम हर चीज को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अवाम को दबाते हैं, अवाम को मारने के लिए है, अगर अवाम को माली हालात खराब करने के लिए है, फिर किसी ऑपरेशन को नहीं मानते। अगर तो मुल्की हालात के लिए हैं, आइन में रहते हुए, कानून में रहते हुए, अवाम के मफाद में कर रहे हैं, तो हर उस ऑपरेशन की हमायत करेंगे जो मेरे मुल्क के लिए है, जो मुल्क के हिफाजत के लिए। चेयरमैन, आपके पास मालूमात तो होंगी ना, इस वक्त मुल्क की वहां पर हालात तो खराब है। जी जी, तो ऑपरेशन की अगर जरूरत है तो होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर तो मेरे मुल्क के मफाद में बेहतर है, मेरे मुल्क के लिए, मेरे लोगों के लिए, तो हम हर उस ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। अगर तो जाती मफाद के लिए है, जैसे अदारे अपने मफाद के लिए करते हैं, फिर हर ऑपरेशन का मुखालफत करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब पिछला साल 2025 बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम साल था, जिसके अंदर मार्का हक भी हुआ, अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी कुर्बतें हुई, प्यार मोहब्बत बढ़ा, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ बड़ा दफाई मायदा किया, और इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके साथ भी मामलात हैं। कैसा आपकी नज़र में ये साल रहा, और मार्का हक को ये दीगर मामलात फौज की कैसी कारकर्दगी, आप इसको कैसे, आपकी एक सियासी चेयरमैन
कारकुन के सिर से कैसे देखते हैं? एक तो ये है कि मेरे मुल्क का बड़ा अच्छा वकार बुलंद हुआ एक इस मार्के की वजह से, और सलार ने जो काम किया बेहतरीन काम था, हमारी इज्जत हमारा वकार बुलंद हुआ, बल्कि हमें मंडी में बड़ा अच्छा मकाम मिला है, हमारा असला बिक रहा है, हमारे जहाज बिक रहे हैं, ये पाकिस्तान की बड़ी अहम चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा 2025 जैसे रहा हमारा 2026 से भी बेहतर हो, मगर सरदार साहब बड़ी अहम चीज़ ये है, चीफ साहब से मैं आपके साथ से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वाज़ेह हो चुका है कि मुल्क जो है ना जनाब आपके हाथ में, मुल्क आप चला रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेहरबानी, हम आपको सलूट करते हैं जो आपके अच्छे काम है, मगर सबसे पहले कर्ज उतारे, कर्ज उतरेगा, सूद उतरेगा, करप्शन खत्म होगी, तो यकीन कीजिएगा सब ठीक हो जाएगा। चीफ साहब अगर आपने करना है तो खुदा के लिए सबसे पहले कर्ज उतारें। अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, खौफ लोग आपसे, मेरा दुश्मन काम पर है आपसे, हमारी फौज एक दुनिया में बड़ा अच्छा मुकाम रख रही है, बड़ी ताकत के साथ आप नुमाया हुए हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हर अच्छी पॉलिसी में हम आपके साथ हैं, मगर सबसे पहले मेरे मुल्क की आवाम, मेरे मुल्क के आम लोग, उनका कर्ज उतारे, फिर हम आपको मानेंगे, आपको सलूट भी करेंगे। सबसे पहले मेरे मुल्क की तरफ आप तवज्जो करें, कर्ज उतारें, मेरी इंडस्ट्री को बहाल करें, मेरे कारोबार को बहाल करें, मेरी जो टेक्नोलॉजी में हमें तरक्की करनी है, तलीम में हमें तरक्की करनी है, खसूसी तौर पर ज़राअत को हमें मुल्क में खड़ा करना है। अगर ये आपने करना है तो देर मत करें, जितनी तवज्जो आप बाहर कर रहे हैं इतनी तवज्जो आप पाकिस्तान के अंदर भी करें, ताकि मुल्क को पांव में खड़ा किया जा सके। और निज़ाम हमने हर हाल में बदलना है, फरंगी निज़ाम को हमने कबूल नहीं करते। निज़ाम भी, अगर आप हाफिज हैं, आप सैयद हैं, तो फिर प्लीज मेहरबानी निज़ाम भी मेरा अपना ही होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर। सर आखिर पे गुजरांवाला में भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए, पीरा फोर्स कर रही है, सीसीडी बन गई है, क्या पंजाब गवर्नमेंट की मरियम नवाज शरीफ ने जब से बागडोर हो रही है तो काम नजर आ रहा है? और ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ दीगर जो हुआ, इसको आप एज ए सियासी वर्कर कैसे देखें? जी देखें, कोई अगर सियासी लीडर या कोई भी पार्टी का लीडर अच्छे काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेग पुलिंग नहीं। लेग पुलिंग तब करे जब कोई गलत काम है, वो गलत काम कर रही हैं, वो दूध दे रही हैं मेगने डाल के, तो मैं मुखालफत भी करता हूँ, आम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म से खुद का मुखालफत मैं मैडम के करता हूँ। अगर वो अच्छे काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट किया, लोगों को कई सालों से कब्जे थे वो मिल के गए, लोगों को ऐसी चीजें जो परेशान थे इस हुकूमत ने उनको दी, मगर साथ साथ ये भी किया कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई चीज नहीं मैडम ये कर रही। मिसाल के तौर पे कब्जा किसी के घर पे है या किसी दुकान को पैरा फोर्स ने खत्म करना है, तो वो जिसने बेची थी, पटवारी ने, कानूनगो ने, तहसीलदार ने, पहले वो उससे पकड़े जिन्होंने कब्जे करवाए, और कॉर्पोरेशन का अमला काम करे पर वो पकड़े जिन्होंने पर्चियां लगवाई, जिन्होंने करप्शन की। ये मेरा सवाल है सबसे पहले। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि काम सरकार का नीचे जो करप्शन है कई सालों से, जी वो ऐसे ही है, पहले कब्जा खुद करवाया, बाद में उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। जब सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ये कैसे है, आप जाएंगे फिर वैसा हो जाएगा। अगर आपके होते हुए वो भी रहा है तो करप्शन वैसे ही, आप पे प्रेशर डाल के जो रिश्वत 1 लाख रुपए की थी वो 50 लाख पे आ गई। सीसीडी का काम भी आप सीसीडी का काम बेहतरीन है, ऐसे ही होते हैं। मेरी मंशियात फरोशों को खत्म कर रहे हैं जो मेरी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कब्जा ग्रुप को खत्म कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे डाकू चोर लुटेरों को खत्म कर रहे हैं जो बेसिक काम है पाकिस्तान करने वाले। ये ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक हो गया। आखिर पे क्या नौजवान नस्ल है पाकिस्तान के अंदर, 65% से जायद नौजवान है जो इस वक्त मुल्क की बागडोर जिनके हाथ में होनी चाहिए, उनके लिए दरवाजे खुलने चाहिए, कारोबार, यहाँ से पढ़ लिख के लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं नौजवान, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आम लोग पार्टी के लिए कि जिसके अंदर वकला भी हैं, वकला के अंदर भी एक तशद्दुद आ गया है, इस तमाम लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे आखिर पे आप मेरे प्लेटफॉर्म से? मेरा जो बेसिक पैगाम है इस सरदार साहब से वसातत से, इस चैनल की वसातत से, खुसूसी तौर पे नौजवान मेरा टारगेट है, खुदा के लिए आप जागें, आप मायूस बिल्कुल ना हो। आपके अगर तलीम है, अगर डिग्री है तो स्किल भी लें, ठीक है। अगर आपको स्किल के साथ भी नौकरी ना ढूंढे, अब आपके पास एक चीज है वो मोबाइल, इससे आप सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मायूस नहीं होना आपने, मगर अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, अपनी जिदोजहद करें बेहतरी के लिए, आपको एक दूसरे का साथ दें। और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन नौजवानों के लिए तहकीक रिसर्च का अदारा होना चाहिए, इनके लिए बिजनेस फोरम होने चाहिए ताकि इनको कारोबार करें, इनको नौकर ना बनाएं, इनको नौकरी बिल्कुल नहीं उस लेवल की आप देंगे ना दे सकते हैं, इनको बिजनेस दें, इनको कारोबार दें। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, खुदा के लिए मरियम के ऐसे प्रोजेक्ट है, इनको बिल्कुल ना करें,
सिर्फ मेरे पंजाब में या पाकिस्तान में इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री बिला सूद कर्जे इसका एहतमाम करें और ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिसके लिए बिजली की सस्ती दें, इनके लिए वो चीज़ें लेबर सस्ती हो, इनके लिए हर वो चीज़ इनको दें 5 साल में ये मुल्क को नौजवान खड़ा कर सके। मैं फिर कहूँगा मुझे आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, खुदा के लिए। अच्छा, आखिरी एक बीच में बात रह गई कि जो हुकूमत ने PIA वापटा या मुख्तलिफ रेलवे प्राइवेट कर रही है, क्या एज ए चेयरमैन आम लोग पार्टी इसकी आप हमायत की या अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का? जी जी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। देखें, घर में अगर आपके पास 5 बेटे हैं ना, तो आप वो कमाऊ बेटे हैं, आप घर से निकाल देंगे तो घर कैसे चलाएंगे? PIA इन्होंने नचकारी कर दी, इन्होंने बेच डाला, इन्होंने शिपिंग बेच डाला, एयरपोर्ट सोर्स कर दिए, अब वापडा कर रहे हैं हम मिसाल के तौर पे, आगे रेलवे कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसे ठीक करें। एक अदारे में 100 बंदे की जरूरत है तो नून लीग ने 90 बंदे भर्ती कर दिए, 1000 पीपल्स पार्टी ने 90 भर्ती कर दिए, काफ लीग ने 90 भर्ती कर, ये सरदार साहब प्रॉब्लम है। उसमें उसको ठीक किया जा सकता है, बेचे ना, उसको ठेके पे दिया जा सकता है 5 साल के लिए बेहतरी करने के लिए, मगर बेचना ठीक नहीं। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। पाकिस्तान का दारों की कोई नचकारी नहीं होनी चाहिए। मेरे मजदूर, मेरे मेहनत कश जो उसमें मेहनत कर रही हैं, उनको बिल्कुल इस तरह निकाल लें, उनको ठीक करें। जो गलत है अपनी गलती माने, उनको दुरुस्त करें, अपने पांव पर खड़ा करना है। पाकिस्तान को अदारों को दुरुस्त करें, अदारे ठीक हो सकते हैं, बेचे मत। अगर एक गवर्नमेंट ये अदारे बेचेगी तो दूसरी गवर्नमेंट आगे क्या करेगी? वो भी बेचेगी, तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? आप कर्ज कैसे उतारेंगे? तरक्की किस पे करेंगे? अदारे बेच दिया आपने। सरदार साहब, तरक्की हो सकती है अगर आप अपना कैमरा बेच देंगे, आप अपना माइक बेच देंगे, तो चैनल कैसे चलाएंगे? मैं सिंपल सा जर्नलिस्ट से सवाल कर रहा हूं। तो ये मेरी पावर है, ये अदारे मेरी पावर है, मेरी ताकत है। और गलत है, इसे ठीक करें, इनको सही कर सकते हैं हम, उसमें से पैदावार को बढ़ाएं और जो बोझ है उसको कम करें। आप सिंपल सा फार्मूला है। सही। नाज़रीन, मेरे साथ नसीम सादिक साहब मौजूद थे, जो चेयरमैन आम लोग पार्टी पाकिस्तान हैं, और इनका एक जो स्लोगन है, सबसे पहले कर्ज उतारो, जिसका 1 साल का मौजूदा हुक्मरानों को उन्होंने टाइम दिया है। ये इनका इस साल की 2026 के अंदर सबसे बड़ी जद्दोजहद की तहरीक होगी, जो पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर, और आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टी है या समाजी पार्टी हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठा करना चाहते हैं कि इस अहम इशू के ऊपर मुल्क को कर्जे की दलदल से निकाल कर एक इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाए, जो कायदे आज़म का, इस अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, उसको सही मानों में तबदील किया जाए। ये इनका मिशन है। अल्लाह करे ये इस मिशन में कामयाब हो और इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैं और मेरे जैसे जितने भी दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ बने और पाकिस्तान को इस जो कर्जे की लानत है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया नसीम सादिक साहब आपका टाइम देने का। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा। बहुत